Good morning, students. Good morning, students. Students, I'm gonna ask you some questions. Good morning, sir. Okay, and if you know the answer, you can write in your chat box, or you can say by unmuting yourself. Okay. So, what do you see in this picture? Sir, they Different are colors of t-shirt. Very good. So these are the different colored of t-shirts. Okay. How many t-shirts are there in this picture? Not this one, in this picture. Sir, there are 5 t-shirts in Very this good. picture. There are 5 t-shirts in this picture. Okay. So now, how many red colored t-shirts do you have? So I have 3 red colored t-shirts. Very good. So what do we call the above information? जो अभी हम पिछली information जो हमने देखी कि t-shirts and फिर number of t-shirts and फिर अभी हमने आपसे question पूछा कि how many red colored t-shirts do you have? So इस information को क्या कहते हैं? This information is called as the data. ठीक है? So now today we are going to discuss about the data handling, that is covered under the portion statistics. ठीक है? So now tell me, what do you see in this picture? There it is. Very good, Pradeep. In this picture, it's a house. ठीक है? How many persons are there in your house? How many persons there in your house? Sir, there are 8 persons in my house. Very good, Shubham. So there are 8 persons in your house. ठीक है? Different persons के घरों में अलग-अलग number of persons हो सकते हैं. चलो. So now let's see what is data. ठीक है? Or the numerical portion. ठीक? So the collection of raw facts and figures is known as the data. ठीक है? कोई भी collection होगा जो कि particular किसी raw fact मतलब original fact का होगा या फिर original figures को हम लोग जिनको define करेंगे, so they are known as the data. ठीक है? जैसे कि 2, 4, 5, 6, these are the natural numbers. ठीक है? So it is the raw collection of the natural numbers. So इसको भी हम data बोलेंगे. और पर्टिकुलर किसी का नेम हो सकता है अनिल या फिर द मिल्क जो कि बहुत ज्यादा बड़ा ब्रांड है दैट इज अमूल या 78 टू डिजिट फिगर. ठीक है? सो दीज काइंड ऑफ द इंफॉर्मेशंस और द रॉ फैक्ट्स और द फिगर्स इज नोन एज द डेटा. ठीक है? ईच न्यूमेरिकल फैक्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ नोन एज द ऑब्जर्वेशन, या इनको न्यूमेरिकल डेटा भी बोला जाता है. किसको? ये जो न्यूमेरिकल पोर्शंस हैं जिनमें हम नंबर्स देख पा रहे हैं. ठीक है? So, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशंस या फिर न्यूमेरिकल डेटा. क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट. नाउ लेट्स सी व्हाट इज इंफॉर्मेशन. बेसिकली द इंफॉर्मेशन इट इज द कलेक्शन ऑफ द डेटा. डेटा का जो भी कलेक्शन होता है दैट इज डिफाइंड एज द इंफॉर्मेशन. ठीक है? सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, नॉलेज. ठीक? So now what's knowledge? It's a collection of information varies person to person. मतलब ये कि ये collection है basically. Information क्या था? It is the collection of data, and knowledge it is the collection of the information. ठीक है? Knowledge क्या है? ये information का collection है जो कि person to person vary करता रहता है. Clear है? चल. Next, what do you see in this picture? Very good, Pradeep. Very good, Kanchan. In this picture, we are very good. In this picture, we are saying that
there are number of students sitting in a classroom, मतलब ये कि ये classroom है ना? Now tell me, how many students are there in this class? How many students are there in this class? Sir, 9 students in this class. Very good, Kanchan. So there are 9 students in this class. ठीक है? To represent the data, ठीक है? डेटा का रिप्रेजेंटेशन बेसिकली हम लोग 5 तरीके से कर सकते हैं. Here it is. The number 1 is pictograph. Number 2 is bar graph. Number 3 is double bar graph. Number 4 is pie chart. And number 5 is histogram. ठीक है? तो चलो सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि पिक्टोग्राफ. So now we are going to discuss. ठीक है? Here it is. पिक्टोग्राफ. बेसिकली पिक्टोग्राफ क्या होता है? इट इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा यूजिंग सिंबल्स. मतलब ये कि पिक्चर्स का यूज करके जब हम किसी पर्टिकुलर डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, सो वो डेटा हमारा क्या कहलाता है? पिक्टोग्राफ कहलाता है. ठीक है? दैट इज नोन एज द पिक्टोग्राफ. क्लियर? जैसे यहां पर मैंने जो एग्जांपल पिक आउट किया कि यहां पर मैंने आपको शो किया है कि एक कार है. ठीक? एक कार इज इक्वल्स टू 100 कार्स. मैंने ये अजम्पशन करके रखा हुआ है. ठीक है? यहां पर हमने एक क्वेश्चन जो किया है वो क्या है कि डिफरेंट मंथ्स में सेल कितनी हुई है, ठीक है, या फिर उनका प्रोडक्शन कितना हुआ है, वो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है. आपको ध्यान रखना है कि एक कार रिप्रेजेंट कर रही है 100 कार्स. ठीक है? सो इन दिस टेबल वी कैन सी देयर आर 1, 2 एंड अ हाफ कार. है ना? इसकी पिक्चर को मैंने हाफ कर दिया है. So there are overall how many pictures manufactured or produced in July? That is 250. है ना? Where half car denotes the half of the 100, यानी 50 cars. So 100 plus 100 plus 50, it will become 250. In August month there are 3 cars. मतलब ये 3 cars नहीं है. हमने यहाँ पे जो assumption करके रखा हुआ है that is 100 cars equals to 1 this picture of the car. तो मतलब ये 100 and 100, overall 300 cars has been produced. Clear है? But in the September month there are 1, 2, 3, 4 pictures को हमने यहाँ पे लगाया है. एक कार रिप्रेजेंट कर रही है 100 कार्स को, तो मतलब 100 plus 100 200 plus 100 300 and again 100 को एड अप करते हैं तो there is 400 cars produced in the September month. On the behalf of the above data, आपके पास यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं कि हाउ मेनी कार्स वर प्रोड्यूस्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई? दैट आर 250. एंड इन व्हिच मंथ वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस्ड? तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स हमारी किसमें है? 250, 300 और 400 में सबसे ग्रेटर ये है, सबसे मैक्सिमम ये है. तो मतलब ये कि सितंबर मंथ में हमने यहाँ पर कार्स सबसे ज्यादा प्रोड्यूस की. सो आवर आंसर विल बी सितंबर. क्लियर है? चलो नेक्स्ट. ये डेटा भी आपको एक पिक्टोग्राफ का ही है, जहां पर हमने पिक्चर की मदद से यहां पर डिफरेंट आपको डेटा शो किया है. यहां पर एप्पल्स को कितने लोगों ने वोट किया है? स्माइलीज के थ्रू मैंने इसको डिनोट किया है. तो कितने स्माइलीज हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. इन द सेम वे ये गुआवा या 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, मतलब 7 या 7 गुआवास को लिया. ग्रेप्स कितने हैं? 1 and 2. और जो फेवरेट फूड जितने लोगों को पसंद है वो क्या है? बनाना को कितने लोगों ने वोट किया? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. ठीक है? अब यहाँ ऊपर गिवन इंफॉर्मेशन की मदद से अगर हम लोग यहाँ पर रिकंस्ट्रक्ट करें एक नई टेबल, इसके बेसिस पे हम लोग कई सारे आंसर्स दे सकते हैं. ठीक है? जैसे मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूं कि एप्पल को कितने लोगों ने पसंद किया, ठीक है, ये आपको डेटा गिवन होगा तो आपको सिंपली क्या करना है? इन पिक्चर्स को काउंट करना है, स्माइलीज को. ठीक है? जो कि कितना आया था? 10 आया. ठीक है? अगली टेबल में हम लोग देखते हैं फेवरेट सब्जेक्ट्स. तो जैसे ऊपर वाली मैंने यहाँ पे इसको आपको इलेबोरेट किया, उसी तरीके से यहाँ पे हम देखते हैं कि मैथ्स, रीडिंग और सोशल स्टडीज. ठीक है? रीडिंग इज नॉट अ सब्जेक्ट बट
इसको मैंने कंसीडर किया कि कितने लोग को पढ़ना पसंद है, ठीक है। सो मैथ्स कितने लोगों को पसंद है, एक पेंसिल मींस 1 वोट। तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा किसकी मदद से हो रहा है, पिक्चर्स की मदद से। सो दिस काइंड ऑफ अ डेटा, दिस काइंड ऑफ अ टेबल इज नोन एज द पिक्टोग्राफ, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द नेक्स्ट वाज द बार ग्राफ, है ना। सो बार ग्राफ क्या होता है, बेसिकली बार ग्राफ में हम लोग एक ग्राफ पेपर पर बार्स के थ्रू डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। आपको यहां पर पिक्चर में दिख रहा होगा, जहां पर इस ग्राफ में इस तरफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है और नीचे मंथ्स चल रहे हैं, ठीक है। और जो डेटा गिवन है वो है बर्थडे ऑफ द स्टूडेंट्स बाय मंथ, कि अगर इस डेटा से आप यहां पर यूनिट देख लीजिए, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट, मतलब ये कि ये जो एक यूनिट लेंथ है वो 2 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर है, ठीक है। सो नाउ अगर मैं कहूं कि मई मंथ में टोटल कितने स्टूडेंट्स का बर्थडे पड़ता है, तो कितना आएगा, 2 अगेन 2 4 6 एंड 8, है ना। क्लियर है, सो देयर इज 8 स्टूडेंट्स, तो 8 बच्चों का जो बर्थडे होगा वो ये ग्राफ शो करता है, ठीक है। सो बार ग्राफ में बेसिकली होता क्या है कि हम लोग डेटा को बार्स यानी इनकी मदद से हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट, डबल बार ग्राफ। इसमें क्या होता है कि एक ही बार को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ द बार्स चलता है। डबल ग्राफ में कंपैरिजन हम लोग देखते हैं कि इसकी तुलना में ये कितना है, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ अ ग्राफ इज नोन एज द डबल बार ग्राफ। यहाँ पर हमने क्या शो किया है कि आइसक्रीम फ्लेवर्स कौन कौन से हैं इस तरफ, और इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनको पसंद है, ठीक है। जो फर्स्ट कलर है दैट इज फर्स्ट ग्रेड, ये पहली ग्रेड की आइसक्रीम है, एंड द सेकंड वन इज द सेकंड ग्रेड आइसक्रीम, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि लेमन की कंडीशन में 2 तरह की बनाई जा रही है, एक फर्स्ट ग्रेड जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी की है और दूसरी सेकंड ग्रेड थोड़ा सा डाउन, ठीक है। सो इस केस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी 11 का जो फ्लेवर था, उस केस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड की आइसक्रीम को चुना और सेकंड ग्रेड की चुना। तो फर्स्ट ग्रेड को चुनने वाले कितने थे, ओनली 5, एंड जो सेकंड ग्रेड थी उसको टोटल 15 पर्संस ने यहां पर इलेक्ट किया, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ अ डेटा जो कि है दैट इज नोन एज द डबल बार ग्राफ। क्लियर है, चल नेक्स्ट इज पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है, व्हेन वी रिप्रेजेंट अ डेटा इन अ सर्कुलर फॉर्म, जब किसी पर्टिकुलर डेटा को हम लोग एक सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस टाइम पर जो डेटा रिप्रेजेंट करने का तरीका है दैट इज नोन एज द पाई चार्ट। सो यहां पर हमने एक सर्कुलर डायग्राम लिया है और इसमें अपने डेटा को रिप्रेजेंट किया है, जहां पर ब्लू कलर इज नोन एज द वॉकिंग, कि ठीक है कि मेथड ऑफ ट्रेवलिंग टू द स्कूल, कि आखिर जो स्टूडेंट्स हैं वो किस किस तरीके को यूज कर रहे हैं स्कूल जाने के लिए, ठीक है। सो कार से कितने लोग जा रहे हैं, वी कैन सी कि दिस कलर डिफाइंस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर ट्रेवलिंग टू द स्कूल विद द कार। सो देयर आर 9 स्टूडेंट्स, ठीक है। सो इस तरीके से हम अपने डेटा को पाई चार्ट के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है, चलो हिस्टोग्राम, द नेक्स्ट इज हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बेसिकली क्या होता है, यहां पर हम लोग फ्रीक्वेंसी से सारा डेटा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहां पर मैंने आपको जो चार्ट दिखाया है, जो डेटा दिखाया है हिस्टोग्राम में, वो क्या है कि कॉन्टिन्यूअस बार्स होती हैं, इट इज जस्ट सिमिलर टू द बार ग्राफ, बट यहां पर क्या होता है कॉन्टिन्यूअस, जस्ट इसके ठीक बगल में दूसरा बार एक बन जाता है। तो दिस टाइप ऑफ डेटा इज नोन एज द हिस्टोग्राम। यहां पर मैंने आपको क्या दिखाया है, एजेस पर्संस की, और यहां पर फ्रीक्वेंसी कि कितनी एज के कितने पर्संस हैं। तो जैसे अगर मैं बात करूं 40 टू 50 के बीच में जो एज ग्रुप है, टोटल कितने पर्संस होंगे, तो इसका डेटा रिप्रेजेंट करता है 4, यानी फ्रीक्वेंसी 4 है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ रिपीटिशंस ऑफ द डेटा, ठीक है। यानी इसके बीच में जितने भी पर्संस आ रहे हैं वो कितने हैं, टोटल 4 है।
यानी 40 to 50 के बीच में, अगर ठीक बीच में मैं सपोज दैट 45 ले लूं, तो ये जो 45 एज के लोग हैं वो कितने हैं? दैट आर टोटल 44। क्लियर है? चलो, द नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि हमने पिछले उसमें देखा हिस्टोग्राम में कि फ्रीक्वेंसी का यूज हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी हम लोग करते हैं। वो कैसे करते हैं, चलिए वो यहाँ पे समझते हैं कि द नंबर ऑफ द टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स इन अ गिवन डेटा, कि पर्टिकुलर जो भी ऑब्जर्वेशन है वो किसी भी गिवन डेटा में जब कई कई बार कॉन्टिन्यूसली आने लगता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसा कि मैंने बताया ना कि पर्टिकुलर डेटा में repetition of the data या repetition of the observation in a given data is known as the frequency। जैसे यहाँ पर एग्जांपल जो मैंने कंसीडर किया वो क्या है कि 4 4 5 5 5 5 7 8 7 7 एंड 7। तो यहाँ पर जो मैंने डेटा लिया है, यहाँ पर क्या हुआ कि 4 2 टाइम्स अकर हुआ, 5 कितने टाइम्स अकर हुआ? 4 टाइम्स, 8 सिर्फ एक टाइम अकर हो रहा है, 7 कितने टाइम अकर हो रहा है? 4 टाइम्स। ठीक है, सो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो नंबर 4 है वो 2 टाइम्स अकर हुआ है, नंबर 5 जो है वो 3 टाइम्स अकर हुआ है, नंबर 7 जो है वो 4 टाइम्स, एक्चुअली नंबर 5 4 टाइम्स है, देखिए 1 2 3 एंड 4, तो ये कितने टाइम्स अकर हुआ है? 4 टाइम्स। नंबर 7 भी 4 टाइम्स अकर हुआ है एंड नंबर 8 कितनी बार अकर हुआ? 1। तो दीज 2 टाइम्स 3 टाइम 4 टाइम्स एंड 4 टाइम्स एंड 1 टाइम्स, ये सब क्या कहलाते हैं आपके? दीज आर ऑल कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी। आर वी क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट, एक मैंने यहाँ पे क्वेश्चन कंसीडर किया है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कि आखिर अबव इंफॉर्मेशन से हम लोग कौन कौन से आंसर्स निकाल सकते। ठीक है, सो द नंबर ऑफ द मेंबर्स इन 20 फैमिलीज आर गिवन बिलो। ये नंबर ऑफ द मेंबर्स है 20 फैमिलीज के। ठीक है, वो यहाँ पे दे रखे हैं। हमको क्या करना है, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ये हिस्टोग्राम का पार्ट है। ठीक है, हिस्टोग्राम का पार्ट है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि नंबर ऑफ 20 फैमिलीज को कंसीडर करेंगे, इसमें से ग्रुपिंग करेंगे 4 6, इसमें आउटकम्स है 5 आउटकम्स 3 एंड 7। ठीक है, अब 4 कितने टाइम्स आया हुआ है, मतलब नंबर ऑफ फैमिली, नंबर ऑफ पर्संस या नंबर ऑफ जो मेंबर्स हैं फैमिली में वो कितने हैं, 4 वाले की कंसीडर करें तो 1 2 3 एंड देयर इट इज 4। तो नंबर ऑफ फैमिलीज 4 ऐसी हैं जिनके अंदर जो मेंबर है वो कैसे हैं? 4। ठीक है, तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? टैली मार्क्स का यूज करते हैं। टैली मार्क्स, इनको हम बार्स के रूप में दिखाते हैं। क्लियर है? देन ऐसी फैमिली जिसमें 6 मेंबर्स हो, नंबर ऑफ फैमिलीज वैसी कितनी है? 3 है ना? तो यहां पर मैंने जो टैली मार्क्स है उनको 3 बार से लिखा। ठीक है, द नेक्स्ट इज 5 नंबर वाली फैमिली कितनी है? टोटल 7 है। कितनी है? 7। ठीक है, so, इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका, जब ग्रुपिंग ऑफ 5 की जाती है टैली मार्क्स में, तो 4 लाइन वर्टिकल, ठीक है, एंड एक क्रॉस में आती है। तो 1 2 3 4 और एक क्रॉस में 5 और 6 और 7, टोटल 7 मेंबर्स को मैं फैमिलीज को मैंने यहाँ शो किया है। 7 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके मेंबर्स कितने हैं? 5। इन द सेम वे 3 मेंबर वाली फैमिली कितनी है? तो वो है 4। एंड 7 मेंबर वाली जो फैमिली है वो सिर्फ और सिर्फ 2 है। इनके टैली मार्क्स को मैंने इस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, 4 वर्टिकल लाइन एंड 2 वर्टिकल। क्लियर है? चलो, मूविंग टू द नेक्स्ट। नाउ स्टूडेंट्स, टेल मी व्हाट इज इंफॉर्मेशन। आप लोगों से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आप उसका आंसर बताइए। Sir, collection of data is called information. very good Kanchan. So the collection of the data is called the information. ठीक है, प्रदीप आप ये बताइए कि व्हाट इज नॉलेज। What is knowledge? Very good, Pradeep. The collection of information is known as the knowledge, है ना? जैसे हमने ऊपर देखा कि the collection of data is called information, in the same way the collection of informations is known as the knowledge. ठीक है? What is pie chart?
Very good, Pradeep. Exactly. So the circular shape chart in which the data can be expressed is known as the pie chart. ठीक है, एक सर्कुलर शेप चार्ट जिसमें हम अपने डेटा को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर पिछले स्लाइड में देखा था कि एक सर्कल लिया था और उसमें हम लोगों ने डेटा को एक्सप्रेस किया. क्लियर? क्लियर है? चल, तो स्टूडेंट अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, आप उसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए. प्रिपेयर अ बार ग्राफ containing data of ages of your schoolmates या classmates. आपको एक बार ग्राफ डेटा आपको कलेक्ट करना है, जिससे आपको एक बार ग्राफ क्रिएट करना है, प्रिपेयर करना है. ठीक है? Then the next is make a pie chart of the above data. जो ऊपर वाला डेटा आप कलेक्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, एजेस जो आप कलेक्ट करेंगे स्कूलमेट्स की, कुछ रिपीट होंगी उसमें भी, सो उसको आपको एक पाई चार्ट में भी रिप्रेजेंट करना. ठीक है, नोट हो गया? ओके, थैंक यू क्लास.